ہے کمال رتبہ مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ، یہ اثر ہے ان کے جمال کا کشفت دجا بجمالہ، کسی ایک ادا کی تو بات کیا حسنت جمیع خصالہ، وہ خدا کا جس نے پتا دیا صلو علیہ وآلہ۔ حضرات گرامی، جلسہ والوں نے میرے ساتھ گیم کھیلا ہے، کہاں گئے؟ یہ بھاری ججمان بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے میرے ساتھ گیم کھیلا۔ انہوں نے وقت لیا تھا 15 تاریخ کا اور تقریر کروا رہے ہیں 16 تاریخ کو، دیکھ لیجیے 12:20 ہو گیا ہے۔ غنیمت جان لے مل بیٹھنے کو، جدائی کی گھڑی سر پہ کھڑی ہے۔ میرے بھائیوں، میں محسوس کر رہا ہوں 12 بج چکے ہیں اور آپ لوگوں کو نیند آ رہی ہوگی۔ 12 پڑھے لکھے لوگ جتنے زیادہ بڑھ رہے ہیں، سماجک برائیاں بھی اتنے ہی بڑھ رہی ہے۔ پہلے جہلوا سب تھا، 10,000 روپیہ تلک لیتا تھا، کتنا؟ 10,000۔ اور تھوڑا سا یہ پڑھ لکھ لیا کہ کیا کر دیا، 10 لاکھ روپیہ مانگ رہا ہے۔ ایسی بیداری پہ ہم لات مارتے ہیں، ایسی تعلیمی بیداری پہ ہم لات مارتے ہیں کہ 2 حرف پڑھ لیا تو 10,000 سے 10 لاکھ اس کا دام ہو گیا۔ یہ تعلیمی بیداری ہے؟ یہ اس سے تو بہتر وہ جاہل تھا۔ لڑکی جاہل تھی تو 10,000 میں اس کا رشتہ لگ جا رہا تھا۔ آج لڑکی گریجویٹ ہے، اس کے باوجود 10 لاکھ تلک دینا پڑ رہا۔ تو پڑھ کے کیا ملا جی؟ آپ لوگ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ 10 لاکھ روپیہ تلک دینا پڑ رہا ہے گریجویٹ پاس ہونے کے باوجود۔ کاہے کا پیسہ دیں گے جی؟ کاہے کا؟ لڑکا والے کا باپ کما کے رکھ گیا ہے۔ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا۔ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا۔ مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ تعلیمی بیداری، تعلیمی بیداری، شکشا شکشا، ایجوکیشن ایجوکیشن۔ ایسا لگتا ہے کہ پوری دنیا کا رقبہ بس شکشا شکشا۔ میں شکشا کا مخالف نہیں ہوں، میں تو خود ہی شکشک ہوں، میں خود مدرس ہوں، ٹیچر ہوں، میں اس کی مخالفت نہیں کر رہا ہوں۔ لیکن صرف تعلیمی بیداری کانفرنس کرانے والوں اور تعلیمی بیداری کانفرنس میں سننے والوں، صرف تعلیمی نہیں، صرف تعلیم نہیں، صرف تعلیم خطرناک پوائزن ہے۔ صرف تعلیم خطرناک پوائزن ہے، سماج میں زہر پھیلے گا۔ تو پھر تعلیم پلس تربیت، پھر سن لیجئے، تعلیم پلس تربیت۔ یہ دیکھیے، یہ کیا ہے؟ بجلی کا تار ہے، اس کو ہم مٹھی میں پکڑے ہوئے ہیں، کرنٹ نہیں نہ مار رہا ہے، کیوں؟ پلاسٹک کا کور لگایا ہوا۔ حالانکہ بجلی میں کرنٹ بہت ہے، یہ بجلی بڑے کام کی چیز ہے۔ یہ بجلی نہ رہے مائک نہ چلے، یہ بجلی نہ رہے لائٹ نہ جلے، یہ بجلی نہ رہے واشنگ مشین کولر فریج نہ چلے، یہ بجلی نہ رہے ٹرین نہ چلے۔ بجلی بڑے کام کی چیز ہے، لیکن اس بجلی میں کرنٹ ہے، شارٹ مارتا ہے۔ یہ مستری کو دیکھا پول کے اوپر سے دھڑام سے نیچے گرا، بجلی کا تار جوڑنے گیا تھا، ایسا کرنٹ مارا نیچے جھلس کے گرا۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہ بجلی بڑے کام کی چیز ہے، لیکن بہت ڈینجر بھی ہے، بہت خطرناک بھی ہے۔ تو خطرناک چیز سے کام لینے کے لیے کیا کیا؟ پلاسٹک کا کور چڑھا دیا۔ پلاسٹک کا کور چڑھا کر کے 2 منزلہ بلڈنگ پہ 10 منزلہ بلڈنگ پہ کبھی دیوار کے اندر وائرنگ کے ذریعے سے بجلی کو لے گئے، کبھی کہیں سمندر پار کر دیا بجلی کو۔
प्लास्टिक के कवर में डाल करके जैसे चाहते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक बिजली को दौड़ाते रहते हैं। बिजली बड़े काम की चीज है लेकिन बहुत खतरनाक भी है। अगर प्लास्टिक का कवर चढ़ा दिया तो खतरे से बच गए। मेरे भाइयों, तालीम बड़े काम की चीज है। यही मिसाल, तालीम बड़े काम की चीज है लेकिन बहुत डेंजर भी है। तालीम के ऊपर तरबियत का कवर चढ़ा दीजिए, तालीम के ऊपर तरबियत का कवर चढ़ा दीजिए तो यही तालीम पूरी दुनिया के लिए लाभदायक बन जाए। यही मिसाल औरत की, तालीम और औरत दोनों। औरत बड़े काम की चीज है। औरत के बगैर घर कब्रिस्तान लगेगा। 4 दिन के लिए मैके चले जाती है, 4 दिन के लिए मैके चली जाती है तो जितना मर्दवा सब है लगता है कि बेचारे को तलाक दे दिया है किसी ने। नहीं, चाय की दुकान पे मुंह लटका करके बैठा हुआ है। देखिए कितने काम की है औरत। औरत बड़े काम की चीज है। औरत न रहे घर का हुस्न नहीं, औरत न रहे जिंदगी का हुस्न नहीं, औरत न रहे चेहरे पे रौनक नहीं, औरत न रहे बच्चे की परवरिश नहीं, औरत न रहे नाश्ता पानी न रहे। बड़े काम की चीज है लेकिन कब? जब औरत पे कवर चढ़ा दिया जाए तब। औरत पे कवर, पर्दे का कवर चढ़ा दो। जब ये औरत बेपर्दा हो जाएगी तो समझिए बिजली का नंगा तार। थोड़ा सा भी नंगा हो तार यहाँ पे, करंट मारेगा, चित हो जाएंगे हम स्टेज पर। क्या औरत से अगर पर्दा हटा दिया जाए तो ये औरत बिजली का नंगा तार है, करंट मारेगी। आज समाज को औरत करंट मार रही, और औरत उसी वक्त तक औरत है जब तक पर्दे में है। अगर पर्दा को हटा दिया जाए तो वो औरत नहीं है। जैसे नमक उसी वक्त तक नमक है जब तक वो नमकीन है। क्या जी? अगर नमक नमकीन न रहे तो उसको नमक कहिएगा? नमक का सारा हुस्न नमकीन होने में है। अगर नमक से नमकीनी को खत्म कर दीजिए तो वो पाउडर होगा, नमक नहीं। चीनी उसी वक्त तक चीनी है जब तक उसके अंदर मिठास है। अगर चीनी से मिठास को निकाल दिया जाए तो क्या है? चीनी नहीं है। मेरे भाइयों, चीनी का हुस्न मिठास में है, नमक का हुस्न नमकीनी में है, मिर्च का हुस्न तलखी में है, औरत का हुस्न पर्दे में है। अगर औरत से पर्दा छीन लिया जाए तो वो औरत नहीं रही। तो क्या वो मर्द हो गई? नहीं, मर्द भी नहीं। तो क्या पता न क्या है? न वो औरत है न मर्द है, कुछ पता नहीं क्या है वो। औरत उसी वक्त तक औरत है जब तक पर्दे में है। 2 चीजें पर्दा चाहती है, 2 चीजें पर्दा चाहती है। औरत दौलत, औरत दौलत। औरत जब तक पर्दे में है सुरक्षित और महफूज है। दौलत जब तक पर्दे में है सुरक्षित और महफूज है। जब दौलत बेपर्दा हो जाए बर्बाद हो जाए, जब औरत बेपर्दा हो जाए तो बर्बाद हो जाए। ये देखिए मेरे हाथ में क्या है? क्या है? लिफाफा। खाली लिफाफा, मौलवी का लिफाफा खाली नहीं होता है ना? ये लिफाफा देख रहे, अगर रोड पे कहीं पड़ा हुआ रहेगा, देखिए लोग पांव डाल करके गुजर जाएंगे कि नहीं? कोई उठा न ले। मैं मिसाल देने के लिए समझाया हूँ। सुनिए, आरा स्टेशन पे मैं 9 बजे दिन में उतरा। टिकट निकालते हैं न बाहर निकलने के लिए कि टीटी मांगेगा। 3 बजे दिन में तकरीर करके, दिन का जलसा था, 3 बजे दिन में तकरीर करके लौटे। 5 घंटा के बाद
एक नंबर प्लेटफार्म पे एक उर्दू लिखा हुआ लिफाफा इसे पड़ा था। लोग कदमों से रौंद के आ रहे थे, जा रहे थे। आज से 22-23 साल पहले की बात, 22-23 साल पहले। मौलवी के सामने उर्दू वाला कागज हो तो मौलवी तो उठावेगा। मैंने उठाया, अरे मदरसा मोहम्मदिया मोमिनपुर पंडौल जिला मधुबनी बिहार। अरे ये मदरसा में तो हम जलसा में गए थे 2 दिन पहले, ये लिफाफा तो मेरे जेब में था, यहाँ कैसे आया? हो सकता है किसी और के पास भी होगा, उसका गिरा होगा। फिर मैंने जेब में हाथ, अरे वाह, मेरे जेब में नहीं है, मेरा ही गिरा था। अब मेरे लिफाफे में 2000 रुपया था। 22-23 साल पहले का 2000 रुपया अभी का कितना होगा? 22-23 हजार रुपया होगा ना, होगा। और वो भी मौलवी का 2000। आप लोग मौलवी को देते ही है कितना, क्या? यानी 2000 रुपए मेरी तनख्वाह थी उस वक्त। उस वक्त गोया 1 महीने की सैलरी। 5 घंटा के बाद देखा, बिल्कुल जल्दी से खोल के देखे पैसा है कि नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, एक लाल वाला हजरिया नोट और पीला वाला पंसैया नोट, पूरा 2000 रुपया सुरक्षित। मैंने खुशी से 100 रुपया सदका कर दिया। मुझे बताओ, ए मेरी माँ बता, मेरी बेटी बता, क्यों महफूज रहा? पर्दे में था, पर्दे में था। दौलत पर्दा खोजती है। दौलत औरत जब तक पर्दे में है महफूज है, जब बेपर्दा हो जाए, कब नीलाम हो जाए, बर्बाद हो जाए, उसकी कोई गारंटी नहीं। आज दोनों की नुमाइश हो रही है, औरत की नुमाइश और दौलत की नुमाइश। दौलत की नुमाइश कब करते हैं? शादी के मौके पर। शादी के मौके पर दौलत की नुमाइश। आजकल की औरत है, उसके भाई की शादी होगी तो 5 सूट सिलावेगी, 5-6 सूट। मौलवी तो तबाह है बेचारा। यार 12,000 रुपया हम कमाते हैं, 500 सूट हम कहां से सिला दें तुमको? तो जा, तो एक ठो से कैसे होगा? हल्दी वाले दिन एक ठो, मेहंदी वाले दिन दूसरा, अब माजा जिस दिन उस दिन अलग, शादी वाले दिन अलग। है दौलत की नुमाइश। एक साहब ने अपने बेटा की शादी की, 3 किलोमीटर बारात ले गए। क्या किलोमीटर? 3 किलोमीटर। 70 स्कॉर्पियो पर बारात ले गया। कितने पर? कहिए ना, सिर्फ 70। 3 किलोमीटर दूर और 70 स्कॉर्पियो। पगलवा से कोई पूछे कि रे पगलवा, ये 70 गाड़ी चलेगी कहाँ? दूल्हा के घर से दुल्हन के घर तक दोनों समधियाना जाम हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा गैप करके अगर खड़ा कर दिया जाए तो दोनों समधियाना जाम हो जाएगा। ये गाड़ियां चलेगी कहाँ? ये दौलत की नुमाइश है और कुछ नहीं। दिखला रहा है अपनी ऊंची नाक, अपने बैंक बैलेंस को दिखला रहा है कि हम आम आदमी नहीं, हम 70 गाड़ी पे मेरे बेटे की बारात जाएगी। काश वो थोड़ी देर के लिए सोचता कि इस 3 किलोमीटर दूर के अंदर कोई यतीम, बेकस, मजबूर, लाचार लड़की होगी, उम्र उसकी ज्यादा हो रही है, महज गुर्बत की वजह से रिश्ता नहीं लग रहा है। वो लड़की जब 70 गाड़ियों की कतार देखेगी, उसके दिल पे क्या गुजरेगी? वो क्या कहेगी? मेरे अल्लाह, मेरे अल्लाह, हाय हाय हाय, मैं कब तक इस धरती पे बोझ बन के रहूंगी? ये 70 गाड़ियों की कतार जा रही है। गरीबों का दिल जलाते हो, बेटा की शादी करते हो, गरीबों का दिल जलाते हो, चिढ़ाते हो। शर्म नहीं आती है? एक और नेताजी हैं, बिहार के एक जिला के, नाम नहीं बतावेंगे, और मुसलमाने हैं जी, हाई वोल्टेज है। उन्होंने शादी की मुखिया की बेटी से 25 किलोमीटर दूर। कितना दूर? 25 किलोमीटर
दुल्हन को जो विदा करके लाए हेलीकॉप्टर पे उड़ा के लेके आए 25 किलोमीटर दूर। रोड खराब रहा होगा नहीं है? ऊपर हेलीकॉप्टर पे ताकि किसी की नजर न लगे। और हेलीकॉप्टर का किराया 13 लाख रुपया, 13 लाख में हेलीकॉप्टर किराए पे मंगाया रांची से। ये क्या हो रहा है? ये दौलत की नुमाइश नहीं है, ये दौलत दिखला रहा है कि हम बड़े आदमी हैं। क्यों किया? ताकि मेरी शादी ऐतिहासिक बन जाए, तारीखी बन जाए, यही ना? हाय हाय, ऐ काश अपनी शादी की तारीख में 2-4 यतीम लड़कियों की शादी कर दिया होता, अपने खर्च से कर दिया होता, तो अल्लाह की नजर में भी, लोगों की नजर में भी, कसम रब्बे जुल जलाल की, उसकी शादी तारीखी शादी हो जाती, ना होती? और 13 लाख में 13 लड़कियों की शादी हो जाती। उधर बहुत शोर हो रहा औरतों में। औरतों में अगर शोर ना हो तो फिर औरत कहां से रही? औरत का मतलब है कुछ बोलते रहना। अगर कोई कहे कि झूठ बोलो, खूबसूरत झूठ, सबसे 1 नंबर का झूठ, ऐसा झूठ कोई ना बोल सके, तो बेहतरीन शक्ल झूठ बोलने की ये है कि मैंने 10 औरतों को एक जगह चुपचाप बैठे देखा। उसको इंटरनेशनल झूठा होने का अवार्ड दे दीजिए कि पक्का इंटरनेशनल झूठा है कि 10 औरत एक जगह चुपचाप, ऐसा कैसे हो सकता है? ये वाकई 1 नंबर का A1 का झूठ है एकदम। बहर के मेरे भाइयों, अभी जो मैं बातें अर्ज करने जा रहा हूँ, तालीमी बेदारी, तालीम प्लस तरबियत, तालीम के साथ अगर तरबियत होगी तब समाज में तब्दीली आएगी। क्यों? आज स्कूल में, प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कहीं भी तालीम तालीम तालीम, बस तरबियत नहीं, तरबियत नहीं है। तालीम के साथ अगर तरबियत है तो ये मदारिस दीनिया में, ये दीनी मदारिस में तालीम के साथ हम तरबियत भी करते हैं। और मैं कहा करता हूं कि तालीमी इदारे पानी टंकी की तरह है। आप तालीमी इदारे में जो पढ़ाइएगा समाज में वही फैलेगा। आप पढ़ाते क्या हो? तालीमी इदारे में पढ़ाते क्या हो? तालीमी इदारे पानी टंकी की तरह है। पानी टंकी में पानी अगर साफ है पूरे शहर में साफ पानी फैलेगा। पानी टंकी में पानी अगर गंदा है पूरे शहर में गंदा पानी पाइप के जरिए फैलेगा। तालीमी इदारे भी पानी टंकी की तरह है। अगर जो कुछ हम पढ़ाएंगे समाज में वही फैलेगा। हमारे यहाँ दारुल उलूम इमारत शरिया में होली के मौके पर 2-3 साल पहले वीडियो साहब आ गए मुआयना करने के लिए, पूछने के लिए क्या पढ़ाते हैं आप लोग। तो वो लोग तो जूता पहन के कब्र में भी जाएंगे, क्या कब्र में भी जूता पहनिए के जाएंगे लगता है। तो जूता हम लोगों को देखा कि उतार रहे तो वो भी उतार दिए गेट पर। कमरे में गए, उन्होंने कहा कि आप लोगों का सिलेबस क्या है, क्या पढ़ाते हैं? मैंने कहा अभी नहीं बताऊंगा। क्यों? जब आप इस रूम से निकलिएगा ना तो गेट पर देख लीजिएगा कि हम क्या पढ़ाते हैं। ये कौन बात हुई? गेट पर हम देख लेंगे क्या पढ़ाते हैं। क्या गेट पर आपका निसाब सिलेबस लिखा हुआ टंगा हुआ है? नहीं, कुछ नहीं टंगा हुआ। आप गेट पे जाते ही देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा हम क्या पढ़ाते हैं। खैर, जब बातचीत करके कमरे से निकले साथे में तो जूता उतारे थे, ऐसे था। हमारे किसी शागिर्द ने, तालिब इल्म ने सारे लोग चप्पल जूते को सीधा कर दिया। अब वीडियो साहब का जूता भी सीधा कर दिया। मैंने कहा वीडियो साहब हमारा सिलेबस यही है, देखिए यही पढ़ाते हैं। हमने किसी बच्चे को कहा नहीं जूता सीधा करने, बगैर कहे हुए सीधा किया। देखिए हम बड़ों का इकराम, बड़ों का मान सम्मान यही हम सिखाते हैं। बहुत खुश होकर के गए।